Hello everyone. Today I am here with one more session of idioms. Okay, let us start. The first idiom is at beck and call. Now, as in the previous session, if you have seen the previous video of idiom, I have taught you how you can link up the meaning of the idiom and understand what it means, because obviously it's not possible for us to know the meanings of all the idioms. So, what is the meaning of call? Call मतलब किसी को बुलाना. At beck and call means जब कोई आपके लिए हर टाइम प्रेजेंट होता है, मतलब कोई हमारे लिए एक आवाज़ में आ जाए. That is the meaning of at beck and call. He is my best friend. He is always there for me at beck and call. Means always present for you. आपके लिए हमेशा प्रेजेंट है. To help you, to be there with you. एक आवाज़ में जो आपके लिए आ जाए, उसके लिए हम idiom यूज़ करेंगे at beck and call. Okay, the second idiom is bag and baggage. Bag means like हमारा जो you can say luggage bag हो सकता है. Bag and baggage means बोरिया बिस्तर लेकर. बोरिया बिस्तर लेकर जब हम कहीं चले जाते हैं with all our stuff and belongings when we leave a place. For that we use the idiom bag and baggage. इसका मतलब ये नहीं है लिटरली कि आप एक बैग लेके जा रहे हैं. इसका मतलब है पूरे सामान के साथ जब आप कोई जगह छोड़ के जाते हैं. That means bag and baggage. He left the village with his bag and baggage. Means all the stuff which he has. The third one is to build castles in the air. To build castles in the air means हिंदी में हम कहते हैं ख्याली पुलाव बनाना. मीन्स जो चीज़ सच नहीं है, बट कई लोग होते हैं अपने मन से बहुत सारी कहानियाँ बिल्डअप करते हैं. दे कीप ऑन मेकिंग लॉट्स ऑफ स्टोरीज अपने ही मन से, मन गढ़ंत कहानियाँ जो सच नहीं होती. तो उसके लिए हम ईडियम यूज़ करेंगे टू बिल्ड कासल्स इन द एयर. ही ऑलवेज बिल्ड्स कासल्स इन द एयर. और यू कैन ऑल्सो से इट इज़ हिज हैबिट टू बिल्ड कासल्स इन द air. The fourth one is by hook or by crook. By hook or by crook means ऐसे नहीं तो वैसे. मतलब किसी भी तरीके से अगर आपने अपने काम को पूरा करना है, अगर एक तरीके से नहीं हो रहा तो आप दूसरा रास्ता फॉलो करोगे. That is the meaning of by hook or by crook. जैसे तैसे काम आपने करना ही है. मे बी बाय गुड मीन्स, मे बी बाय रॉन्ग मीन्स, बट आपको अपना काम कंप्लीट करना है या अचीव करना है वट एवर यू वॉन्टेड. तो उसके लिए हम ईडियम यूज़ करेंगे बाय हुक और बाय क्रुक. ही विल सक्सीड बाय हुक और बाय क्रुक. मीन्स जैसे भी हो बट वो सक्सीड करेगा. The next one is in a fix. Now what is the meaning of fix? Fix मतलब होता है जब आप कहीं एक जगह फंस जाते हैं. Fix मतलब कहीं एक ही जगह stick हो गए. So in a fix means to be in some kind of a trouble. To be in a trouble. किसी मुश्किल में होना या किसी परेशानी में होना, उसके लिए हम idiom यूज़ करेंगे in a fix. I broke the red light yesterday and now I am in a fix. So in a fix means to be in trouble, किसी तरह की मुसीबत में होना. The next idiom is from hand to mouth. From hand to mouth means जितना आपने कमाया उतना ही खर्च कर दिया. Like your income is limited. Whatever you earn and you spend it. You don't earn enough to save or to do, you can say, or to buy luxury items. आपने जितना कमाया बेसिक और उतना ही खर्च कर दिया. तो उसके लिए हम idiom यूज़ करेंगे from hand to mouth. Means a limited income. Sentence can be poor people live from hand to mouth. मतलब जो poor people हैं they generally they live hand to mouth. Next is in the twinkling of an eye. In the twinkling of an eye का मतलब है पलक झपकते ही. जब कोई काम हो जाता है एकदम पलक झपकते ही, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो काम हो गया. When you don't even notice, आपको रियलाइज भी नहीं होगा और कोई काम आपकी आंखों के सामने ही हो जाएगा. That is the meaning of in the twinkling of an eye. Sentence can be the pickpocket removed the purse from the man's pocket in the twinkling of an eye. मतलब पलक झपकते ही pickpocket ने चोरी की.
The next one is ins and outs. Ins and outs means details. किसी भी चीज़ की जब हम डिटेल्स डिस्कस करते हैं, पूरा डिस्कस करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ऑल द यू कैन से द पॉइंट्स रिलेटेड टू इट, पूरी डिटेल्स आपने पूरी जानकारी किसी भी मैटर की ले ली है, दैट इज इन्स एंड आउट्स. Yesterday we discussed the ins and outs of the matter. Next one is lion's share. Now as the word suggests, lion share means सबसे बड़ा हिस्सा. The largest share, सबसे बड़ा हिस्सा, उसे बोलेंगे lion's share. The eldest brother got the lion's share of the property. जो सबसे बड़ा भाई है उसे सबसे बड़ा शेयर मिला प्रॉपर्टी में. The next one is null and void. Null and void means when something becomes zero. जब कोई रूल, ये मोस्टली हम रूल के लिए यूज़ करते हैं, जब कोई भी रूल है जो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया है, विच इज़ मीनिंगलेस, उसका कोई मीनिंग नहीं है, दैट इज़ इट हैज़ बिकम ज़ीरो, उसके लिए आप यूज़ करोगे null and void. This particular rule in the constitution is now null and void. मतलब ये जो रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ये अब ख़त्म हो चुका है, ज़ीरो हो गया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. सो इन सच केस वी यूज़ null and void. Now the next idiom is to sell like hot cakes. ना अब आपने देखा होगा जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है, दिवाली, सपोज़ दिवाली आता है तो दिवाली पे जो पटाखे होते हैं या स्पेशली मिठाइयाँ होती हैं कितनी जल्दी बिक जाती हैं. सब लोग घर में मिठाइयाँ ख़रीद के लाते हैं, क्रैकर्स लाते हैं, डेकोरेशन का सामान लाते हैं, नए नए कपड़े लाते हैं. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिवाली के टाइम पे लोग बहुत जल्दी ख़रीदते हैं. तो जब कोई चीज़ बहुत जल्दी बिकती है, समथिंग विच सेल्स क्विकली, जब कोई चीज़ बहुत जल्दी बिक जाती है उसके लिए हम ईडियम यूज़ करते हैं टू सेल लाइक हॉट केक्स. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसी को हम सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ड्यूरिंग दिवाली द स्वीट्स दे सेल लाइक हॉट केक्स. दिवाली के दौरान जो मिठाइयाँ हैं वो बहुत ही जल्दी बिकती हैं. तो कोई भी, नाउ यू कैन थिंक, आप सोच सकते हो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी बिकती हैं और किन सर्कमस्टांसेस में, कौन से ओकेजन्स में बिकती हैं. तो ये चीज़ें सोच के आप अपने आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ टू पोक वंस नोज इनटू. पोक मतलब होता है जैसे किसी के साथ छेड़छाड़ करना, पोक करना. नोज, यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोज. टू पोक वंस नोज इनटू का मतलब है अपनी इंटरफेरेंस दिखाना किसी के मैटर में, दूसरे के मैटर में अपनी टांग गड़ाना या अपनी बिना बात के राय देना, एडवाइस देना, दैट इज़ होता है टू पोक वंस नोज इनटू. मीन्स टू इंटरफेयर. जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है, आपसे कोई एडवाइस नहीं मांग रहा है, आपसे कोई आपका ओपिनियन नहीं मांग रहा है, बट कुछ लोग आपके भी फ्रेंड्स होंगे या आपके कई रिलेटिव्स होंगे, इफ़ यू सी, जो उनकी आदत होती है बिना बात पे अपनी टांग गड़ाना या बिना बात पे अपना कुछ ना कुछ बीच बीच में किसी के पर्सनल मैटर में दखल देना. तो दैट इज़ टू पोक वंस नोज इनटू. लाइक वी कैन से, आई हैव अ रिलेटिव, माई आंट, शी हैज़ अ हैबिट ऑफ पोकिंग हर नोज इनटू एवरीबडीज मैटर. मतलब उनकी आदत है कि हर किसी के मैटर में अपनी टांग गड़ाना, अपना इंटरफेरेंस करना. और ये आई थिंक ये हम सब इसके साथ जस्टिफाई कर सकते हैं. हमारे आसपास सबके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स डेफिनेटली ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं. सो वहाँ पर आप ये ईडियम का यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ एन ईडियम विच एक्चुअली रिलेट्स टू ऑल ऑफ अस. द नेक्स्ट वन इज़ सेफ एंड साउंड. सेफ मतलब सुरक्षित. तो सेफ एंड साउंड मतलब होता है बिल्कुल सुरक्षित होना, विदाउट हार्म. जब किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ हो, सपोज़ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट होता है, बट एक्सीडेंट होने के बाद भी कोई पर्सन है जो बिल्कुल सुरक्षित है, उसको कोई चोट नहीं आई है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सेफ एंड साउंड. आई वॉज हैप्पी टू सी माई फ्रेंड सेफ एंड साउंड बिकॉज ही हैड मेट अ ट्रैजिक एक्सीडेंट. उसे एक दुर्घटना को फेस करा था, उसके बाद वो बिल्कुल सुरक्षित है, तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेफ एंड साउंड. ये हम सिर्फ किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ों के लिए भी कई बार हम यूज़ कर सकते हैं कि दिस थिंग इज़ सेफ एंड साउंड विद मी, यू कैन ट्रस्ट मी. ये चीज़ मेरे पास सुरक्षित है, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो. द नेक्स्ट इज़ थ्रू थिक एंड थिन.
thin and thick are opposites. So through thick and thin मतलब अच्छी और बुरी परिस्थितियों से गुजरना. जब आप good और bad circumstances से गुजरते हो, then we can use the idiom through thick and thin. कई बार हमारा सपोज एक फेज चल रहा होता है लाइफ में, व्हेन वी आर डिप्रेस्ड, वी आर नॉट हैप्पी, और हमारे कई फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत सपोर्टिव होते हैं, हमारे साथ अच्छे टाइम में भी रहते हैं और बुरे टाइम में भी होते हैं. कई फ्रेंड्स होते हैं जो बुरे टाइम में हमें छोड़ देते हैं, बट कई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो हमारे साथ दोनों समय में हमारे साथ कोऑपरेट करके हमारी हेल्प करते हैं. सो देयर यू कैन यूज द इडियम थ्रू थिक एंड थिन. ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, he always stays with me through thick and thin. मतलब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो हमेशा मेरे साथ अच्छी और बुरे सर्कमस्टांसेस या परिस्थिति में दोनों में ही मेरे साथ हमेशा रहता है. The next one is at the 11th hour. At the 11th hour का मतलब होता है लास्ट मिनट पे. जब कोई काम हम बिल्कुल लास्ट टाइम पे करते हैं, लास्ट मिनट पे, सपोज हमारा कल एग्ज़ाम है और हमारे पास 3 दिन की छुट्टियां हैं, प्रिपरेशन लीव है एग्ज़ाम से पहले, बट नो वी आर बिजी प्लेइंग ऑन अ फ़ोन या गोइंग टू रिलेटिव्स हाउस या इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम अपना. कल सुबह लेट्स से 7 o'clock हमारा एग्ज़ाम है और हम रात को पढ़ने बैठ रहे हैं, लेट नाइट. सो दैट इज़ आप 11th आवर पे पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल लास्ट मिनट पे प्रिपरेशन कर रहे हैं. आप पे 3 दिन थे बट आपने कोई तैयारी नहीं करी, आप बिल्कुल लास्ट मिनट स्टडीज़ कर रहे हो. सो वहाँ आप ऐसी सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हो इडियम एट द 11th आवर. सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है जिसका एक्सीडेंट हुआ हो और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया हो और डॉक्टर को बिल्कुल लास्ट मिनट पे बुलाया गया हो, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो द डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन एट द 11th आवर. ये जैसे मैंने एग्ज़ाम्स का एग्जाम्पल दिया था, तो वहाँ बोल सकते हो he always studies, वो हमेशा, so he always studies at the 11th hour, वो हमेशा ही लास्ट मिनट में पढ़ता है. नाउ स्टूडेंट्स, तो जो भी idioms मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस करे हैं टुडे एंड ऑल्सो इन द प्रीवियस सेशन विच आई टॉक, जिन स्टूडेंट्स ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो, बिकॉज उसमें मैंने कुछ बहुत अच्छे idioms डिस्कस कर रहे हैं और मेनली मैंने आपके साथ वो idioms डिस्कस करे हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ दोज idioms. अब आपको रिलेट करना है, आपको सोचना है इंसिडेंसेस, अच्छा हमारे साथ ऐसा होता है या किसी फ्रेंड के साथ या रिलेटिव्स के साथ या कोई चीज़, कुछ भी आप उसको रिलेट करो लोगों या चीज़ों के साथ एंड ट्राई टू फ्रेम योर सेंटेंसेस. अगर आप सिर्फ इडियम लर्न कर रहे हो कि अच्छा इसका मतलब ये है, इट विल नॉट हेल्प यू. आपको एक्चुअली सिचुएशंस को ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और फिर इडियम उसमें यूज़ करना पड़ेगा. सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप देखो अपने आसपास की सिचुएशन को देखो and then try to fit in the idiom. Let's see, which is the best idiom you can fit in, and then put those sentences, or if you have paragraphs, just put them in the comment box. Let me also see that what you have learned, what you have made from on your own. बाकी स्टूडेंट्स भी देखेंगे. दिस इज़ द वे वी शेयर लर्निंग. ये एक लर्निंग को शेयर करने का तरीका है. मे बी यू कैन कम आउट विथ सम वेरी गुड सेंटेंसेस. आपसे और स्टूडेंट्स वो सेंटेंसेस देखेंगे कमेंट बॉक्स में, दे कैन ऑल्सो लर्न. सो जस्ट शेयर योर नॉलेज प्लीज़. ट्राई टू यूज़ दीज ईडियम्स इन सेंटेंसेस, एंड सेंटेंसेस बहुत ऐसे बनाइए जो हमारी डेली लाइफ में रिलेट करते हैं. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए हैं, फ्रेंड के साथ या रिलेटिव के साथ ऐसा होता है. सो इस तरह के एग्जांपल्स या सिचुएशंस को सोचकर सेंटेंस बनाइए. आई विल बी वेटिंग फॉर योर सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स इन द कमेंट सेक्शन. Please put them there. Thank you very much. In the next session, I will be coming up with some more vocabulary. Thank you. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.